Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have discussed about one of the natural resource that is water, in which I have also discussed about the water pollution and its effect. Now in this video, I will discuss the another natural resource that is soil. So let us start the class. So students, first question arises, that is, what is soil? Now, to know what is soil, you have to first know what is earth crust. Earth crust is the outermost, thinnest layer of earth, which extends from surface into the depth of about 25 miles towards the core. Means earth crust जो है वो earth का outermost thinnest layer है, जो कि surface से लेकर 25 miles अंदर तक होता है, towards the core means towards the center, and the uppermost humus containing part of earth crust, which contains weathered minerals and is suitable for plant growth, is called soil. Or in short, you can say that the upper layer of the earth crust containing minerals is called soil. Now, how this soil is formed? Soil is formed by the weathering process, a process known as weathering. Now, what is this weathering? Weathering process means the breaking down of rocks. So, you can say that soil is formed from the rocks. Rocks are broken down and then soil is formed. And this breaking of rocks in smaller particles to form soil is known as weathering. Now, these rocks are broken down by various methods like physical, chemical and some biological process to produce or to form soil. Now, the first physical process is the sun, or you can say heat. Now, heat comes from the sun. During daytime, these heat coming from the sun used to expand the rocks को expand करते हैं, and at night, since heat is not produced by the sun, क्योंकि heat उतना नहीं होता, means temperature उतना नहीं होता, that's why rocks starts to cool down and this contracts the rock, means heat के वजह से दिन में rocks expand हो रहे हैं और जो टेम्परेचर कम होने की वजह से, कूल डाउन होने की वजह से रॉक्स जो हैं रात में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड दिस रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यूज टू फॉर्म क्रैक्स in between the rocks, and ultimately these huge rocks break up due to the cracks. तो बार बार ये contraction relaxation की वजह से cracks पड़ते जाते हैं और जो रॉक के पार्टिकल्स हैं वो कमज़ोर होते जाते, वीक होते जाते, जिससे वो ब्रेक डाउन हो जाते और वो सॉइल बनाते हैं. द नेक्स्ट फैक्टर मीन्स फिजिकल फैक्टर इज़ वाटर. वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑल्सो. अब ये कैसे? पहली चीज़ तो ये कि वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स of the rocks formed due to the uneven heating of sun. मीन्स वो जो सन की वजह से अनइवन हीटिंग हो रही थी, कूलिंग और हीटिंग, जिसके वजह से क्रैक्स बन रहे थे, ये जो वाटर है उसमें एंटर कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आफ्टर द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर दीज वाटर फ्रीजेज इन दैट रॉक क्रैक्स. उस क्रैक्स के बीच में ये फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रैक्स जो बने हुए थे रॉक्स के बीच में वो और ज़्यादा वाइडन हो जाते हैं, मीन्स चौड़े जाते हैं, क्योंकि वाटर तो कहीं भी एंटर कर सकता है, बट जो बर्फ़ जम जाती है फिर वो एक सॉलिड पार्ट होती है. दैट्स वाई इट ऑल्सो वाइडन्स. जो पहले से क्रैक्स बने हैं रॉक्स में उसे और चौड़ा कर देती है, जिसकी वजह से जो ये रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं. अब दूसरा क्या तरीका है जिससे वाटर जो है जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है फ्रॉम द रॉक्स? हाई स्पीड वाटर, हाई स्पीड मूविंग वाटर जो है इट यूज टू रब दी रॉक्स. आपने रिवर में देखा होगा कई बार, आप मान लो 1 साल पहले किसी रिवर साइड पर गए हैं, वहाँ पर बीच में रॉक्स होते हैं, तो उस पर से जो वाटर मूव कर रही है कॉन्स्टेंटली, और 1 साल बाद आप देखते हैं कि वो जो रॉक है उसकी साइज़ जो है, वो जो पत्थर उस नदी के बीच में था उसकी साइज़ कम हो गई है. क्यों? बिकॉज द मूविंग वाटर यूज टू रब अगेंस्ट अदर रॉक्स. मीन्स जो मूविंग वाटर है वो रॉक्स के ऊपर रब कर रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो पार्टिकल्स उससे टूटते हैं, दीज
small rock particles used to rub down on another rock particles, and constantly this process helps in the breaking down of all the rocks, and these rocks when becomes smaller and smaller then they forms the soil. सो इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जो रॉक्स है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जो मूविंग वाटर की वजह से ब्रेक डाउन हो रहे हैं और सॉइल बना रहे हैं। ये ऐसे भी सॉइल बनाते हैं जो उस जगह पर जहाँ पर वो रॉक है उस जगह ना बनकर जो सॉइल है वो दूसरी जगह जाकर, क्योंकि वाटर मूव कर रहा है, उन पार्टिकल्स को ले जाकर कहीं और सेडिमेंट करता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो कहीं और बन रही होती है। Now the next factor which helps in soil formation is wind. In this process also the similar thing occurs which occurs in water. That is similar to the high speed water, moving winds also rub against the rock and they erodes the rock. वो धीरे धीरे जो rocks होते हैं उसे घिसते हैं, erode करते हैं, due to which these rocks breaks down, और उसके जो छोटे particles हैं they used to get sediment on another place. वो दूसरी जगह हवा के साथ उड़कर दूसरी जगह पहुँचते हैं और वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, रॉक बनाते हैं। सो इस तरह से जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं जैसे सन, वाटर, विंड, ये जो है ये रॉक्स के फॉर्मेशन में यानी वेदरिंग में जिससे रॉक से सॉइल बनता है उसमें हेल्प कर रहे हैं। Now, one of the biological factor is also there which helps in the formation of rock, and that is one of the living organism named lichens. Lichens जो है ये bare rocks पर grow कर सकते हैं, मीन्स ये ऐसे रॉक्स पर ग्रो करते हैं जहाँ पर पहले कोई प्लांट नहीं होता। तो ये लाइकेंस क्या करते हैं, दे यूज टू ग्रो ऑन दैट रॉक्स एंड वाइल ग्रोइंग देयर दे यूज टू रिलीज सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस भी रिलीज़ करते हैं। लाइकेंस क्या है, एग्जैक्टली फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो लाइकेंस जब ग्रो करते हैं तो रॉक्स में कुछ सब्सटेंस भी रिलीज़ करते हैं, and this chemical substance used to cause rock surface to powder down, means ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जो रॉक्स का सरफेस होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट होना शुरू करता है, एंड देन दिस पाउडर डाउन द आउटर सरफेस ऑफ रॉक, जो रॉक का आउटर सरफेस जो ब्रेक डाउन हुआ, जो पाउडर के फॉर्म में बना, they then forms the thin layer of soil. Now after that some more plants you can grow there because lichens makes the rock somehow fertile. Then if some more other plants grow there, then the roots of that plant will enter into the rocks and they will crack those rocks and break down them to form the soil. So these are some factors which used to cause weathering process, which helps in the formation of soil from the rock. Now, the composition of soil. Soil is a mixture of small particles of rock of different sizes, humus, and microorganisms. Now, first of all, what are the particles of rock? Depending upon the size, there are 4 types of particles of rock. First is gravels, which has the size of 2 to 10 mm. Second is sand, which has the size of 0.02 to 2 mm. Then third one is silt, which is smaller than sand. Its size is 0.002 to 0.02 mm. And the last is clay. The finest one is the smallest size, means it has the size less than 0.002 m. So rock breaks down into various size in various particles, and according to the size there were 5 rock particles which is forming the soil, that is gravel, sand, silt and clay, among which sand, silt and clay are the main components of the soil. Now second thing in soil was humus. Humus is exactly the dead decaying living organisms, means जो भी living organisms की death होती है, animals हो या plants के जो parts होते हैं, branches या leaves, वो जो dead पार्टिकल्स हैं, जो डेड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमस। एंड द थर्ड थिंग प्रेजेंट इन इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उन डेड लिविंग पार्ट्स को डिके कर रहे हैं।
ओके, तो कंपोजिशन क्या है सॉइल का? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक, humus and microorganisms. Now next is type of soil. Exactly, the type of soil is decided by the average size of particles found in it. तो अभी हमने देखा कि रॉक के पार्टिकल्स थे, रॉक के जो पार्टिकल्स थे अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले. तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स और साइज ऑफ पार्टिकल्स, टाइप ऑफ सॉइल इज़ डिपेंडेंट. उस सॉइल में कौन से पार्टिकल्स, किस साइज़ के पार्टिकल्स जो है रॉक के प्रेजेंट है, उससे टाइप्स डिफाइन होता है. फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज सैंडी सॉइल. दिस सैंडी सॉइल इज द कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड पार्टिकल्स. जो सैंडी सॉइल होंगे, जहाँ पर सॉइल में, जिसे हम सैंडी सॉइल कह रहे हैं, वहाँ पर सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे और थोड़ा बहुत क्ले और सिल्ट के पार्टिकल्स होंगे. एंड द पार्टिकल्स आर लार्ज, सो वाटर ईजली परकोलेट्स डाउन. मीन्स बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं सैंड के. क्ले और जो भी क्ले और सिल्ट है उससे ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से पानी जो है वो नीचे चला जाता है. सो जो प्लांट्स वहाँ पर, जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स बिना वाटर के ग्रो नहीं कर सकते, दैट्स वाई वहाँ पे प्लांट भी कम होते हैं ऐसे सॉइल में. एंड दीज सैंडी सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन डेजर्ट्स. सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज क्लेई सॉइल. This clay soil contains large quantities of clay and very small quantity of silt. और यहाँ पर sand नहीं होता, sand particles इस तरह के soil में नहीं होते. And these particles are small and closely packed. बहुत ज़्यादा इसके particles closely packed होते हैं, बहुत small होने की वजह से. And they have the high water retention कैपेसिटी. हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मीन्स ये पानी को पकड़ के रख सकते हैं, बट दे हैव लो एरेशन. बीच में स्पेस ना होने की वजह से भी यहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकते. प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल में दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो वाटर और दूसरा उस सॉइल के बीच में जगह. मीन्स इतनी जगह कि आसानी से रूट्स जो है वो अंदर पेनिट्रेट कर सकें सॉइल के अंदर, और साथ ही साथ एयर जो है वो पास ऑन हो सके. ओके, तो क्ले सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, बट एरेशन नहीं है. वहाँ पर सॉइल से पार्टिकल्स में बीच में जगह नहीं है, इसलिए एयर पास नहीं होता, और इसके वजह से रूट्स जो है वो आसानी से उसमें ग्रो भी नहीं कर पाते. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स. तो मतलब सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल जो है, इस टाइप के जो भी सॉइल्स हैं वो प्लांट्स के लिए सुटेबल नहीं होते. नाउ द थर्ड टाइप इज़ लोमी सॉइल. एंड दिस लोमी सॉइल कंटेन्स clay, silt and sand, all the three things in the ratio of 1:2:1. means 1 part clay, 2 part silt and 1 part sand. means यहाँ पर silt थोड़ा ज़्यादा होता है. and these loamy soils are porous, well aerated and has good water retention capacity also. मतलब ये जो लोमी सॉइल है पोरस भी होते हैं, मीन्स आसानी से उसमें रूट्स जो है प्लांट के वो पेनेट्रेट कर सकते हैं उससे. दूसरी चीज़, उसके पास वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी अच्छी होती है, मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और साथ ही साथ एरेटेड सॉइल होते हैं, क्योंकि पोर्स होते हैं इसलिए आसानी से उसमें जो रूट्स को ग्रो करने के लिए एयर चाहिए, जो सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए जो एयर चाहिए, वो भी आसानी से उसमें मिल जाता है. सो लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट growth. So that's all for this video. In next video I will discuss about quality of soil pollution and its effects. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.